Elevators are the most awkward human experience. No one knows where to look at or what to say. See, I kind of disagree with this one. तुमको हर जगह क्यों बात करनी है? That is You are just going there to be elevated from the ground floor to the 5th, 6th floor, whatever. elevated from the ground यहाँ पर ये floor. Dua Lipa का edit डाल. You should be allowed to tell your barber he ruined your life without feeling guilty. Bro, I think every guy has experienced this. Yes. तुम बैठे हो वो सीट पे, हाँ. hopes लेके आए हो कि bro, I'm going to get a banger haircut. That barber fucking starts shaving your head off. It is the worst haircut you have gotten, and you can see it happening. Let's go. Hello, welcome back. Rolling. So पहले बोलना होता है. So in today's episode, we are going to talk about some general conceived notions Yeah. that might be unpopular as well. Hmm. They are technically the imposters in this hot takes world. Sorry, in the takes world. So it's a hot take technically. And brand indication. करना पड़ता है. Subtle. Okay, so let's get going. Let's begin. Yes. So hot takes. Let's go. First one. Hmm. Hot take. Doing a master's abroad is just an expensive way to delay adulthood. It's a total waste of money. Only rich people can say that. Can do that. Yeah. See, I'm very of the strong belief. Hmm. Like I'm of a very strong belief that if you do it from a great college, you know, like a top Yeah. university, be it India, abroad, anyway, Yeah. so it's like, you know, worth the money. 100%. आपका जो भी payback होगा, it will be like, you know, super sorted and Hmm. like just like if you just work hard after that, Yeah. so you'll be sorted for life. Hmm. Is you know what I feel. Yeah. But like if you like do it from a very like you know tier 2, so not even tier 2, like you know tier 3 tier 4 college, Hmm. बस ऐसे ही जा रहे हो है Yeah. ना. See, at the end आपको अंदर से पता है कि आप किस कारण के लिए जा रहे हो, Hmm. है ना. तो उसमें just be honest with yourself. Here in brief, like you know, I would say कि अगर शायद से मेरे बाप के पास भी अंधा पैसा होता हाँ. तो मैं भी सोचता ठीक है लाइफ में चिल कर सकता हूँ, so why Yeah. not. Yeah. But at the end, I would like myself to be honest with me and my like you know family and friends. मेरे को 100%. चिढ़ मतलब यू नो उन लोगों से मचती है जो लोग ऐसा बस लाइक यू नो बेफालतू का झूठ बोले जा रहे हैं डिल्यूजन में Hmm. कि नहीं मैं तो ऐसे जा रहा है. अबे तेरे को पता है कि तू जा बकचोदी रहा है चिल करने जा करने. रहा है, हाँ. हाँ, एंड इट्स ओके, तेरे पास पैसा है, व्हाई हाँ. नॉट, जस्ट डू इट. मैं होता तो शायद से मैं भी करता. हाँ. मेन रीजन ऐसे बोलते हैं ना कि जो डिफाइन करता है हाँ. तुम किस चीज के लिए जा रहे हो. हाँ. जैसे तूने बोला इफ यू हैव a good amount of money, हाँ. if you don't have to worry about money, then go. Even if Yeah. you're like going just for the experience to stay alone, Yeah. to see how the world works, go for it. Education अगर secondary भी ला, in ideal हाँ. scenario it shouldn't be secondary, but अगर secondary भी रहा और तुम्हारे पास पैसा है, go for it. But I know a lot of people जो घर पे ऐसे घर का लोन लेके जा रहे हैं, घर पे लोन लेके जा रहे हैं, they Mortgage are लेके not जा रहे हैं, हाँ. not in a great financial condition, but they are still going just for the sake of going. कि सब जा रहे हैं मेरे आसपास, so I have to do a masters. So it makes zero sense to me. If you don't have the money, you are putting a Correct, family under absolutely. pressure, and then you're going, and over there you're chilling, like Yeah. party कर रहे हो, No पढ़ भी sense. रहे हो, but हाँ. party कर रहे हो, not doing a part-time job. पढ़ाई party. It makes zero sense. तुम इधर ही वो मेहनत कर लो ना. तुम क्यों अपने family पे Correct. pressure डाल रहे हो? And apart from it, my mom once told me, which I think to me is very true. My mom just told me कि यार इन लोग इतने सब बच्चे जाते हैं, Hmm. इन लोग के कभी यहाँ पर ही अच्छे मार्क्स नहीं आए, अपने माँ बाप के सामने बैठ के इन लोग नहीं पढ़ते, Yeah. बाहर अकेले क्या ही पढ़ेंगे इन लोग. Exactly, bro. So exactly. आई एम सेइंग कि अगर चलो तुम एक कोई tier 2 tier 3 कॉलेज से भी पढ़ रहे हो, हाँ. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो पूरी पढ़ाई वेस्ट हो गई या फिर हाँ. जो भी, Yeah. बट आपको उसके रिटर्न्स में भी अच्छे से नहीं मिले. हाँ. एंड अगेन लाइक फिर एट द एंड आपको पता है कि मतलब कि वही ना जो लोग उतना रिस्पॉन्सिबल लाइक नहीं होना चाहते क्योंकि उनको पता है कि यू नो आई नीड टू स्टे बैक एंड कंट्रीब्यूट, सो दे आर कि चलो थोड़ा प्रेशर बना के घर पे टाटा बाय बाय बोल देता हूँ, Correct. तो मैं 3-4 साल वो responsibility नहीं आएगी. हाँ. ये तू वो छोड़, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़. बहुत लोग जैसे यू नो क्या कहते हैं शादी से बचने के लिए भाग जाते हैं. But you see 27-28 year olds just Yeah. like you know going abroad हाँ. और you know some IIM वगैरह. Yeah. तो they are like तो एक्चुअली लोग बोलते हैं कि ना अभी मेरे को शादी नहीं करनी थी, मेरे को वहां से प्रेशर आ रहा था तो मैं MBA हाँ. करने निकल गया. निकल गया भाई. ये तो सही है भाई. शादी बचाने के लिए हाँ. 50-60 लाख Actually लोग करते हैं. हाँ. It is very common, हाँ. bro. और कुछ लोग majority of the हाँ. people like I used to think in that way कि चल भाई अभी 22-23 हो गया, now I have to do a job.
हाँ। and my first job was very toxic. हाँ So I left that job and I was like, bro, मेरे को masters के लिए जाना है, I don't want to do a job again. हम्म, तो मेरे दिमाग में ये था कि I'll rather study for 2 more years than do a job here. हाँ Because my first job was very toxic. हाँ तो एटलीस्ट मेरा 2 साल तो और डिले हो जाएगा जॉब करना. So a lot of people हाँ. think in that way also कि भाई मेरे को जॉब नहीं करना. I would rather study for 2 more years, थोड़ा live that college life for 2 more years, then Yeah. I'll be more responsible. मेरे को उन लोग का नहीं समझता कि जिनके बाप का अच्छा धंधा है हाँ एंड दे नो कि मैं चाहे कितना भी पढ़ाई कर लूँ मैं हाँ. यहाँ पर ही आने वाला हूँ फिर से. हाँ तो दे लाइक कि नो ब्रो आई एम गोइंग फॉर हायर एजुकेशन ताकि आई कैन जस्ट कम बैक हम्म एंड हैंडल माई डैड्स बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स. आई एम लाइक क्या सेंस है ये. हाँ. बहुत लोग पीयर प्रेशर में जाते हैं. पीयर प्रेशर Yeah. में भी बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का. पेरेंट्स Because- का. हाँ अब मेरी एक रिलेटिव है, हाँ नाम तो ऑब्वियसली नहीं ऐसा नहीं ले सकता हाँ क्योंकि अच्छा बनता है, बट शी वंस टोल्ड समवन हाँ जो फिर मेरे को पता चला हाँ कि एंड शी वाज लाइक कि ना मेरे तो सारे फ्रेंड्स के सब बच्चे लोग जा रहे अब्रॉड अभी मेरा बच्चा नहीं जाएगा तो फिर कैसा कैसा लगेगा. लगेगा. और ये इंडियन पेरेंट्स में एक बहुत गंदी मेंटालिटी है कि बाकी के बच्चे जो कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे को भी करना ही चाहिए. हाँ तो मेरे नेबर गए मास्टर्स के लिए, मेरा बेटा कैसे नहीं चाहेगा भाई, मेरा बेटा ज्यादा पैसे खर्च करता है. हाँ वो पैसा खर्च. हाँ, ईगो पे आ रहा है भाई. नेक्स्ट वन, imposters hot takes. You should be allowed to tell your barber he ruined your life without feeling guilty. ब्रो आई थिंक एवरी गाय हैज एक्सपीरियंस दिस. Yes. तुम बैठे हो वो सीट पे, हाँ. होप्स लेके आए हो कि ब्रो आई एम गोइंग टू गेट अ बैंगर हेयर कट, Yeah. और तुम बता रहे हो कि इधर से फेड करना ब्रो, 0-1 हाँ, बार्बर को बता रहे हो. दैट बार्बर फकिंग स्टार्ट्स शेविंग योर हेड ऑफ. इट इज द वर्स्ट हेयर कट यू हैव गॉटन एंड यू कैन सी इट हैपनिंग बट यू कांट से एनीथिंग. यू आर जस्ट, वो Yeah. बार्बर बीच में पूछता है बराबर लग रहा है ना, वो मिरर हाँ. लेके आता है बराबर लग रहा है ना, एंड यू आर लाइक हाँ हाँ बढ़िया लग रहा है हाँ. बढ़िया लग रहा है. यू कांट इवन से एनीथिंग टू दैट Yes. गाय. और पूरा हेयर कट होने के बाद यू हैव द वर्स्ट फकिंग एक्सपीरियंस. यू तुम्हारा पूरा हफ्ता खराब होने वाला है. तुमको Yes. पता है कि भाई क्या बकवास हेयर कट किया है, बट तुम्हारे दिल में बट भाई इसको मैं क्या ही बोलूँ, हाँ. तो मैं क्या ही बोलूँ, अब क्या ही हो सकता है. और तुम हाँ तारीफ कर रहे हो, हाँ हाँ भैया मस्त हेयर कट किया. इज जस्ट समथिंग दैट यू कांट से ब्रो. यू कैन नेवर से दैट भैया ये क्या किया है. Yes. It's just something that you can't, what do you say, can't express to that person. I don't know why, bro. It's just a feeling. I think one of the worst experiences known to mankind Yeah. is, and that he sees coming, is that फिर after the haircut he goes home Yeah. and वो उसको पता है कि शावर लूंगा बाल एकदम गंदे लगने वाला है. You just walk into the bathroom, take a shower, ऐसा सब है ना, ये अपना क्या बोलते हैं पूरा शैम्पू वैम्पू करके you come है ना हाँ. outside and that time you just look at your hair and you're like ये अब 4 दिन में अगर घर में रहूँ तो ये अच्छा है, ये 4 दिन 5 दिन बाद मेरे बाल अच्छे लगेंगे. अभी तो और fuck उसके हो गया. बाद सबसे खराब फीलिंग क्या होती है जब तुम्हारी मॉम तुमको बोलती है क्या हेयर कट कराया तूने. तारीफ You करती know- तेरी मम्मी. हाँ, you know it's the worst fucking haircut because your मेरी- mom will always say the opposite. हाँ मतलब कि मेरी मम्मी तो तारीफ ही नहीं करती बिकॉज अभी तो हम लोग साइड से कटाते हैं वगैरह. हाँ तो शी इज लाइक कि तू क्या इतना पैसा दे के आता है इसको साइड से हाँ. कटाने का, खुद ही लेके कर दे ये सब क्या है वगैरह. बट But वो like, बोलते you हैं ना know- ऐसे, अगर तुम्हारी मॉम तुम्हारी हेयरकट की तारीफ कर रही है तो तुमने गंदा हेयरकट कराया है, और हाँ. तुम्हारी मॉम को लग रहा है तुम्हारी हेयरकट गंदा है, दैट मींस यू हैव डन अ गुड जॉब. हाँ वही. Next one. Imposters hot take. Elevators are the most awkward human experience. No one knows where to look at or what to say. See, I kind of disagree with this one Hmm. because I feel कि तुमको हर जगह क्यों बात करनी है. That is Yeah. It's an elevator. You are just going there to be elevated from the ground floor to the 5th, 6th floor or whatever. shit. elevated from the ground. यहाँ पर ये floor. Dua Lipa का edit डालते हैं. वैसे माइक पे कर रही है. But I'm saying कि यार it's like a 1 minute thing maximum. Yeah. और वैसे भी पूरा लोग भर जाते हैं है ना. हाँ. It's like a hot box in there. Yeah. And I'm just thinking मैं उधर एक्चुअली मैं नींद में होता हूँ. हाँ. मैं एक तो एक कोने में रहता हूँ. हाँ. तो आई जस्ट लीन देयर एंड आई एम Yeah. थिंकिंग साला अभी 9 घंटे यहाँ पर बिताने ऑफिस में, कब घर जाने को मिलेगा हाँ. क्या पता ये वो. Yeah. मतलब मेरे को कुछ थॉट ही नहीं आता. हाँ. एंड द ओनली वन कंसर्न लाइक व्हेन आई एम इन एन एलिवेटर इज दैट कि मेरा वाला बटन दबाए कि नहीं. हाँ. दैट इज द ओनली थिंग आई नो. The most awkward experience is when you know a person दैट टाइम and you just need to make small talk. For example, तुम 11th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक नीचे आ रहे हो, हाँ. तुम्हारे साथ ही कोई बंदा चढ़ा और तुम उसके साथ बात नहीं कर सकते हो. हाय अंकल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, हाँ. बढ़िया. फिर बस स्मॉल टॉक कर लिया और उसके बाद इस अब मैं क्या बात करूँ. अब 10 फ्लोर तक मैं साइलेंट रहूँ या तो मैं कुछ कॉन्वर्सेशन करने का ट्राई करूँ या तो मैं ऊपर देखते रहूँ नीचे देखते. दैट इज द मोस्ट ऑकवर्ड एक्सपीरियंस. व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग एट ऑल देन इट्स फाइन, बट व्हेन यू मेक स्मॉल टॉक देन यू आर लाइक अरे भैंचो तो इसके बाद क्या बोलूँ यार. ये एक्चुअली बिल्डिंग वालों के साथ होता है. हाँ. विद ऑफिस कलीग्स आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट. Yeah, it's with building only. Yeah. हाँ वो क्या ऑफिस कलीग में तो क्योंकि आप वो फ्लो में हो तो आप लोग फिर बात करने लग जाते हो, वरना हाँ. अगर कोई आपके सर और हाय सर वगैरह, बट ठीक है Yeah. नॉर्मल सब फिर गए नीचे. Yeah. ये सब बिल्डिंग वाले में भी स्पेशली कोई अगर मेरी मॉम की कोई फ्रेंड है
या कोई मेरे डैड का फ्रेंड है हाँ, एंड ऑब्वियसली फिर मेरे को भी जानता है, हाँ, तो फिर दैट टाइम यू लाइक कि मैं तो इनसे वैसे भी उतना बात नहीं करता, खाली हाय वाले होता है, वो भी जब ऐसे क्रॉस हो रहे होते हैं तो हाय अंकल हाय अंकल। ये तो अभी मैं एक बॉक्स के अंदर हूँ फॉर लाइक ओनली 30 seconds, but that 30 seconds are very long, as you are saying. yeah. Imposters hot takes. Indian parents aren't actually strict. They are just scared of other aunties. They care too much about other people's opinions. 100% ट्रू। ऐसे बोलते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पेरेंट्स पीयर प्रेशर होता है कि भाई यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि बाकी लोग क्या बोलेंगे। अगर हाँ। हमारी बेटी रात को 10 बजे घर से बाहर जा रही है और वो आंटियों का गैंग नीचे बैठा है, बाप रे ब्रो, ये आंटियां बोलेंगी इसकी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है, संस्कार नहीं दिए हैं। हाँ। कोई बेटा रात को घर पे 2 बजे आ रहा है और आंटियां नीचे गॉसिप कर रही है, अरे ब्रो 2 बजे इसका बेटा घर आ रहा है, कुछ काम वाम नहीं करता है क्या, ये पार्टी करते रहता है क्या? आंटी 2 बजे क्या कर रही है? एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही नहीं आता कि तुम बैठ के 2 बजे बात कर सकते हो, हाँ। बट बेटा नहीं आ सकता। Correct. तो ये चीज बोलते रहो, सोसाइटी में एक वो बन गया है स्टीरियोटाइप की कि भाई अगर ऐसे नहीं, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आर आल्सो स्टिक कि 10 बजे के पहले घर पे आ जा, फॉर अदर रीजंस एज वेल, सिक्योरिटी, सेफ्टी, व्हाटएवर। बट बिल्डिंग के वो जो आंटियां प्रॉपर रहती है ना, उनको तो चाहिए वो दरवाजे के, वो गेट के एंट्रेंस के यहाँ पे ही बैठती है, हर एक जो भी आ रहा है उसके बारे में कुछ बात करेगी आधा घंटा का। अच्छा ये आ रही है, क्या कर रहा है जिंदगी में, अरे इसका तो ब्रेकअप हो गया, इसकी गर्लफ्रेंड है, तेरे को पता है, वो आंटियों का चलते रहता है। सो इट्स Indian parents should realize that you don't give 2 fucks about what other people are saying, bro. It's like it's 2025. The generation is a newer generation. They don't think about all this shit, and you also shouldn't. तो एक पॉइंट के बाद वो आंटियां भाड़ में गई, ब्रो 10 साल में मरने वाली है, सूख है। True, very true, I would say. Yeah. But again, at the same point, like we have been in a place where our parents have almost allowed us everything, without Yeah. caring कि ये क्या सोचेंगे वगैरह. Yeah. So there are things which my mom has allowed me, जैसे normally कोई नहीं करते allowed या फिर जो भी. But again, I understand the point from the sense because she told me, देख मैं तेरे को allow कर रही हूँ, but ये किसी और को नहीं पता चलना चाहिए. तो फिर that I understand कि उनको ये है कि अगर ये भी जो भी फिर XYZ पर्सन को पता चला, तो वो बेफालतू का फिर बात को फैलाएगा, और कभी मेरी मॉम का मिलके जान बल्कि लाइक फिर दिल भी लाइक कि अच्छा ऐसा ऐसा, एंड माय मॉम इज लाइक यार मेरे को ये सब पे बात ही नहीं करना किसी के साथ, बिकॉज एट द एंड इट्स माय लाइफ, इट्स माय चिल्ड्रन, एंड फिर लाइफ व्हाटएवर वी वांट टू डू we'll do, like why to discuss with people. बट इट्स लाइक कि तुमको है कि अभी क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि अगर इसने मेरे को आगे कुछ बेफालतू का किया कन्फ्रंट, और फिर मैंने इसको बोला, एंड इफ ही और शी डजंट अंडरस्टैंड, तो वो फिर यू आर लाइक कि तुम तो फिर चढ़े जाओगे, मतलब कि तुमको वैसा फिर मन करेगा कि मैं थोड़ा सुना देता हूँ इसको, अरे क्या है ये मेरी लाइफ के, बट यू आर लाइक कि वी जस्ट वांट पीस, वी वांट टू अवॉइड ऑल दिस नॉनसेंस. तो फिर बेटर इज कि चल मैं देखो कर रही हूँ, अलाउ, आई डोंट माइंड इट, बट तू फिर और को मत फैला. फिर वो क्या फिर फैल के फिर हमारे पास आती है ना, तो आई डोंट वांट टू गो डाउन एंड बी लाइक कि ये 100 लोग को पता है, सब ब्रॉडकास्ट चैनल ना, सबको ही पता चल. हाँ, मतलब कि सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल लाइक फ्रॉम दैट सेंस आल्सो कि तुम थोड़ा फिर प्राइवेट भी रखो. मतलब कि एग्जांपल, जब मैंने बचपन में स्टार्ट किया था नॉनवेज खाना, अभी तो बहुत लोग खाते हैं, बहुत मारवाड़ी लोग खाते हैं, इट्स अ बिट कॉमन, लाइक फिर बट इनिशियली इट वाज लाइक कि तू फिर हर एक को मत बताया कर, तू कभी तेरे बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ खा ले या फिर ऐसा, तो भी जाके हर एक को बताएगा. फिर मतलब, एंड आई डोंट वांट यू टू बी यूज्ड एज अ बैड एग्जांपल इन समवन एल्सेस हाउस. करेक्ट, कि हर एक को अपना ओपिनियन थोपना है. हाँ, सबको जज करने के लिए सब रेडी है भाई कि नहीं हमें ज्यादा पता है, हम है ना वो पोजीशन पे है भाई, हमारी कुर्सी है बिल्डिंग में भाई. हमारे पे एक टाइम पे, पुराने टाइम पे, मतलब वो बिल्डिंग में ऐसा हुआ था कि ब्रो आंटियों की ना स्पेसिफिक कुर्सियां रहती थी, सबने पिच इन करके कुर्सी ली थी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा उस पर भी बैठ रहा है ना, वो लोग चढ़ जाते और वो लोग ताला लगा देते, पता है, कुर्सी को ऐसा. ये फैक्ट है, एक्चुअली होता था. हाँ, वो पूरा चेयर का स्टैक करके उस पर ताला लगा दिया ताकि कोई और कुर्सी ना ले ले, क्योंकि ऐसे बच्चे कभी थक के कुर्सी ले लेते थे ना, आंटियां बोलती थी हमने पैसे भरे, ये हमारी कुर्सी है, हमारे गैंग 8 बजे नीचे आ रहा है, तुम कैसे बैठ रहे हो, तो ताला लगा देते वो. ये लोग साला प्रॉपर्टी के लिए लड़ते, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं. इंडियन आंटीज नीड टू गेट अ लाइफ. दूसरों के लाइफ में मत घुसो, और जस्ट नीड टू अनलाइफ. Yeah, exactly. Imposters hot take. Live-in relationships should be more common in India. People shouldn't judge you for it. I do think so. I think it should be like normalized basically. Yeah. But again, लोग का रहता है कि रेंट पे कौन घर देगा, because they are like for bachelors not allowed, especially two like फिर बैचलर्स हो तो ऑपोजिट जेंडर नॉट अलाउड, लड़का लड़की साथ में कैसे रह सकते हैं, वो भी शादी के बिना. कहाँ पर मंगलसूत्र, आपका मंगलसूत्र नहीं है, मतलब आई थिंक उसके ऊपर पूरी मूवी बनी थी, क्या नाम है उसका, लुका छुपी करके. लुका छुपी, हाँ. बट वही बस, सो देखो वो एक तो मेरे हिसाब से वो फिर नॉर्मलाइज तो आई थिंक फिर हो ही जाना चाहिए.
उसके अलग ही आई थिंक प्रोज भी है कि लाइक यू नो यू जस्ट लाइक यू नो गेट टू नो द पर्सन बेटर. एग्जैक्टली. देखो इट्स लाइक कि आप बहुत ज्यादा ही प्यार में हो आपके पार्टनर के साथ एंड ऑल दोस थिंग्स which I get. But it's a completely different ball game when you stay together and you have to live together under the same roof. Yeah. And you know just be in each other's presence for like you know 5 or 10 hours a day. 100%. At that time you'll realize कि तुम प्यार तो करते हो बट क्या तुम इतना प्यार करते हो कि तुम झेल सकते हो इस आदमी Exactly. को, है ना? बिकॉज हर एक के सब खराब आदतें हैं, ये है XYZ है. लाइक फॉर बॉयज दे स्टे इन अ हाउस कि सब मतलब तुम बाहर से खेल के टी-शर्ट उठा के यहाँ फेंक दिया, फैल गए. नाउ वी आर लकी इनफ कि हमारी मॉम्स कर ली थी कॉम्प्रोमाइज कि चल ठीक है मैं उठा के डाल दी हूँ धोने में, ये है वो है. अ नॉर्मल लाइक योर पार्टनर तो फिर वो तो चिढ़ेगी फॉर ऑब्वियस रीजन कि ये क्या करता है साले को तमीज नहीं है, कैसे भी आके फैल जाता है, लेट जाता है, फेंक देता है यहाँ से वहाँ. दैट सेंस आई एम सेइंग in the end I तो think it should be a compulsion, like before marriage you should actually live together to see how your relationship compatible also. relationship actually works. जैसे first point you should be able to know each other कि तुम साथ में रह सकते हो कि नहीं, तुम डेट वेट कर रहे हो, तुम whatever you are engaged, तुम मिल रहे हो दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, whatever, बट इन दी एंड तुम अलग अलग रह रहे हो. साथ में रहने से तुमको पता चलता है कि तुम्हारे हैबिट्स क्या है, तुम एक दूसरे को कैसा टॉलरेट कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट इट विल गेट अनोइंग. यू विल हैव फाइट्स बिकॉज यू आर स्टेइंग अंडर वन रूफ. यू विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस. मेरे लिए मेरी टेबल इधर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए टेबल उधर होना चाहिए. So these fights will actually make you understand कि तुम if you are actually if you want to make this relationship work कि तुम fight में तुम्हारा first choice is to run, भाई ये क्या हो रहा है, मैं भाग रहा हूँ. So it should be a compulsion. And secondly जैसे तूने बोला कि स्पेशली फॉर बॉयज हमें हैबिट है कि हमारी मॉम या तो हमारे डैड व्हाटएवर पेरेंट्स सब इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कपड़े किधर भी डाल दिए, किधर भी कर दिया. तुम जब साथ में रहो यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्हें वो डिवाइड करना है कि ठीक है ये चोर्स तुम करोगे, ये चोर्स मैं करूंगा, एंड यू सी हाउ इट्स वर्किंग. एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग यू टॉक अबाउट इट, फिगर शिट आउट. तुम डायरेक्टली शादी कर रहे हो और तुम ये सब तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि भाई ये बंदा रोज 8 बजे बैठता है पीने मस्त, ये बंदा कपड़े धोना कपड़े नहीं धोता है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ रहा है. और दिया तो मेरा उनकी बंदी रोज 8 बजे बैठती है पीने. इक्वालिटी ब्रो. तो इट्स लाइक तभी शादी के बाद ये सब रियलाइज होना है. देन इंडिया बीइंग इंडिया, ओ डिवोर्स ब्रो, डिवोर्स कैसे कर सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली में. देन इट्स एन इश्यू अगेन, देन यू आर स्टक फॉर द एंटायर लाइफ, यही बंदे के साथ रहना है मेरे को. So I don't think it should be a compulsion. At least stay with each other for 6 months, even not a year. Stay with each other for 6 months. And I'm not saying with your parents. Get a separate flat. Again, financial reasons, जो भी हो सकता है. But if you have the financial power, then stay bro. Yeah. Stay for 6 months. Stay for a year. Try to make it work. If it's not working, then you will also realize नहीं है भाई ये नहीं work हो रहा. And I also think कि it also tests the ability of you कि for how long can you be the bigger person in the relationship in terms of like you know sacrificing and all those things. Correct. कि मैं इतना sacrifice कि अभी देख वो तो human nature है. अभी तुम एक हॉल में रह रहे हो जैसे तूने बोला कि ठीक है टेबल यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, बट सामने वाली बोल रही कि नहीं आया, तो तुमने चल ठीक है तू कर ले. नाउ लाइक दिस ऐसे 3-4 और इंस्टेंस हो गए. तेरा एक आएगा नो ब्रेकिंग पॉइंट वेयर यू विल बी लाइक कि चौथे 5वीं चीज के बाद कि तो हर चीज तेरे हिसाब से हो. तो ये भी समझ में आता है कि इन टर्म्स ऑफ कि यू नो मेरे की फिर मेरा टॉलरेंस लेवल कितना है, प्लस इसका भी फिर थॉट प्रोसेस कैसा है कि ये एक्चुअली खुद को फिर पापा की परी समझती है कि तो मैं जब है ना फिर मेरे बाप के साथ रहती थी तो फिर वहाँ पर तो सब बात मानते थे मेरी. बल्कि फिर अभी भी होना चाहिए. फिर देन यू हैव टू टेक अ स्टैंड, मतलब मैं खाली एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि यू नो फिर देन यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि नो बेटा if this is not how the world works, like even you need to compromise and ना फिर do some adjustments in order to. वैसे रात को डैडी यूज हुआ नहीं. कुछ नहीं बोलूँगा मैं. Imposters hot takes. Indian parents should stop forcing their children to do engineering. भाई this तो should be a rule bro. Every engineer I know is not doing engineering right now. मैं जो भी मतलब ऐसे 2-3 तो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो हमारे पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं और इन जनरल मैं भी जानता हूँ लोगों को, सब ये बोलते हैं कि ब्रो इंजीनियरिंग मैंने किया क्योंकि मेरे डैड को चाहिए था, इट्स फॉर सेफ्टी रीजंस. और ये भी मैं बता दूं, स्टॉप फोर्सिंग योर चिल्ड्रन. और इंडियन पेरेंट्स का ये है ना, मतलब नॉट एवरीवन बट सम ऑफ द पेरेंट्स आर लाइक ओ आई कुडंट डू इट सो आई वांट यू टू फुलफिल माय ड्रीम. इंजीनियरिंग वो लोग एक नॉर्म है कि भाई काफी टाइम से इंजीनियर्स आर वेल पेड, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, इंजीनियरिंग करना ही पड़ेगा. बट इन दी एंड तुम 3 साल बच्चे को फोर्स कर रहे हो जो उसको नहीं करना है, और फिर 3 साल बाद जब इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है, उसको जॉब नहीं मिलती है, तब जाके वो पेरेंट्स को बोलता है कि ब्रो मेरे को ये करना ही नहीं, आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स. एंड देन यू हैव टू अग्री. यू कांट बी फोर्स हिम टू डू अ जॉब व्हिच ही डजंट वांट टू डू. ही विल बी लाइक नहीं मैं नहीं कर रहा. तो तुम 3 साल उल्टा वेस्ट कर रहे हो. तो पहले ही तुम 3 साल पहले सुन लेते हो उसको जो करना रहता है, वो 3 साल का वो कर लेते हो, अभी तक उसका करियर थोड़ा स्टेबल हो जाता. तो इट्स नॉट राइट फॉर यू टू थोपोफाई योर ओपिनियन ऑन योर किड
कि नहीं भाई, तो इंजीनियरिंग करना ही है क्योंकि इट इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, इंजीनियर हो तो रिस्पेक्ट मिलेगा, अगर तुम नॉर्मल कुछ कर रहे हो तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा और तुम पैसे नहीं कमा पाओगे। तुम्हें जो करना है वो बाद में करना है इंजीनियरिंग के, बट इंजीनियरिंग करो। इट इज नॉट राइट, यू आर पुटिंग अननेसेसरी प्रेशर। और इसकी वजह से 3 days इज द बेस्ट एग्जाम्पल ब्रो। सुसाइड किया वो बंदे ने कि मैं वो करना ही नहीं था, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स पे प्रेशर है, फाइनेंशियल कंडीशन इज रियली फक्ड अप एंड दे वांट मी टू डू इंजीनियरिंग, बट इन द एंड योर किड इज सफरिंग, ही इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। और 3 साल बाद अगर तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारा किड्स रिटर्न्स देगा तुम्हें इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो पोजीशन पे ही नहीं रहेगा क्योंकि उसको करना ही नहीं था। उसने ना ही इंजीनियरिंग पे ध्यान दिया है, वो पैसे वेस्ट कर रहा है, हर सेमेस्टर फेल हो रहा है, तुम ही ज्यादा पैसे भर रहे हो केटी के अगले सेमेस्टर पे करने के लिए। तो इन दी एंड इंडियन पेरेंट्स आर समवॉट गेटिंग देयर इन टर्म्स ऑफ गिविंग फ्रीडम टू देयर चिल्ड्रन कि ठीक है, आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें ये करना है, यू शुड डू इट, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल वेरी बैकवर्ड एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट क्योंकि वो लोग ने भी अपने पेरेंट्स से जो सीखा है वही कर रहे हैं। बट हाँ, धीरे धीरे आई थिंक वो प्रोग्रेस आ रहा है, बट इट हैज टू कम थोड़ा और जल्दी सो दैट देयर ओन किड्स डोंट सफर। Correct. And apart from that, फिर when the parents think, कि अपना क्या कहते हैं, when the parents think कि इसको engineering करना चाहिए because it is well respected and all those things, it also stems from the fact because they think कि अरे इसको अच्छे मार्क्स आते हैं, ये साइंस में अच्छा है, तो like साइंस में अच्छा है तो engineering करेगा, वरना like he'll go on and become a doctor or something like that. But also I think कि it depends, like it should mainly depend on the type of conversation that you had with your parent. And when you were just for getting into like just after boards of 10th boards, I'm saying the kind of conversation that your parent had with you, and here I think it kind of majorly depends on the parent only. Like the onus is on them to just communicate honestly, what they expect of their child. It can be in terms of respect, it can be in terms of jobs, it can be in terms of family support, and the responsibility that the child has to bear since a young age, or like for whatever. So I think that if you have a very honest heart to heart conversation, then I think कि अगर उसको कोई चीज नहीं भी करनी होगी ना, और वो like समझ रहा है कि मेरे बाप को भी कोई मजा नहीं आ रहा मेरे को पढ़ा के, मतलब to like kind of throw off engineering on me, but if he has some valid point, then ठीक है, so I'll do it. But जब वो actually पढ़ेगा ना, मतलब कि he won't do it out of much frustration. Correct. And he won't do it out of hatred for his parents also. तो उसके जो तो बोला तो उसके फेल होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, एटलीस्ट पास हो जाएगा, ये सब निकाल देगा। अगर फिर बट जबकि पेरेंट्स भी ऑनेस्ट नहीं हो रहे, दे आर नॉट टेलिंग हिम द ट्रूथ एंड द सिनेरियो, तो वो फिर यहाँ से भी ऑनेस्टी नहीं है, यहाँ से इसको पता है कि मेरे को कुछ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन मिल नहीं रहा, एंड देयर इज नो काइंड ऑफ लाइक अ प्रॉपर वर्ड हैपनिंग बिटवीन अस, तो फिर ये भी ढीठ बन जाता है ना, फिर वहाँ से इन लोग भी एकदम स्ट्रॉन्ग कि नहीं ऐसा ही है। So I think ये पूरे सिनेरियो में is the thing where the entire like the thing मतलब कि that the entire scenario gets fucked up, and at the end the child only suffers, yeah, है ना, because at the end तो career उसका ही है। Exactly. Okay, the next one, imposter's hot take. If you're satisfied with just doing a 9 to 5, you'll never be successful in life. Yes sir. See, for me again it will be a bit diplomatic, yeah, but success, like it has various definitions, different meanings, yeah, it can be non-monetary, it can be monetary, yeah, in terms of monetary wise also, yeah, हर एक का वो लेवल अलग है। किसी का नेटवर्थ 1 करोड़ है, वो उसमें खुश नहीं है, किसी का 10 करोड़ है बट बहुत खुश है, किसी का 20 करोड़ है बट वो like he is not happy in 20 CR of net worth, सेफ खेल रहा है शिवा, नहीं बट इट इज लाइक कि तुम्हारे मतलब लाइक तू समझ रहा है, अगर आज मेरा नेटवर्थ है लाइक for 20 CR है लेट्स से, एंड आई एम हैंगिंग आउट विद पीपल जिनका 40 CR है, 50 CR है वगैरह, तो उस टाइम मेरे को फिर बहुत फीलिंग आएगा कि अरे मेरा तो लाइक सबसे कम है वगैरह, ऑल्दो आई एम अ बिजनेस ओनर, है ना, तो अभी तो मैं तो 9 to 5 भी नहीं कर रहा, बिजनेस ओनर भी हूँ, है ना, मेरे पास 20 करोड़ का मेरा नेटवर्थ है, बट यू आर लाइक यू आर स्टिल नॉट हैप्पी, है ना, तो फिर व्हाट इज सक्सेस देन एट द एंड, एंड अगेन इफ यू थिंक फ्रॉम अ नॉन मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अगेन लाइक योर हेल्थ, your kind of mental peace and all those things, and at the end like to just have that feeling कि हाँ मेरे पास इतना है और मैं खुश तो हूँ, I'll try to do like even better, and obviously like there is no end to making money, but एक वो होता है ना, पता है कि जैसे कि like अक्षय कुमार भी like he has told I think many times कि like when I joined the film industry it was obviously to make money, but after a certain point जब एक amount मेरे पास आ गया
तो मैं भी पैसों के लिए नहीं काम कर रहा, मैं पैसे चार्ज करता हूँ नो डाउट, अभी Of काम course. कर रहा हूँ तो चार्ज ही करूंगा, मेरे भी Yeah. टाइम का वैल्यू है, Yeah. बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लाइक अपना अपना मेरे को पैसे कमा के इससे मेरा घर चलाना है, कि मेरे को ये करना है। वो बोला अभी उतना हो गया कि वेर यू डोंट इवन थिंक मच अबाउट इट, Money. क्योंकि Yeah. खर्च कब करोगे, मतलब कि बस हर बार ऐसा सब बैठ के बस ऐसा यील्ड कैलकुलेट करना है, रेंटल यील्ड कितना आ रहा है मेरा साल का। Yeah. I mean, Hmm. you are justifying your surname right now. Ekdam dodging all the bullets, talking like a politician. Playing very safe. But yeah, bro, I mean, again, it's different for different people. But for me personally, I 100% agree with this. Because like if you're just, I mean, if you have like really big goals, if you want that freedom in life, and if you're just doing a 9 to 5 and you are like, okay, bro, I'm happy with it, I'm not doing anything else in life, then you're not going to be successful. And I'm not saying कि start a business, but बोलते हैं ना कि लोग ऐसा सुबह 9 बजे उठ रहे, फटफट नहा रहे, 10 बजे ऑफिस पहुंच रहे, घर पे आ रहे, सो रहे, and then you want to be like, oh bro, I want to be the richest man of this planet. It doesn't work like that. You're not taking care of your health. ना ही जिम जा रहे हो, ना ही कुछ कर रहे हो, ना ही तुम कुछ साइड हसल कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, then it won't work. So a lot of people in our age have also realized कि भाई सिर्फ 9 to 5 से नहीं होने वाला है. हमने शायद लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस इसलिए किया तो ये कर रहा है टाइम पास। टाइम पास नहीं है. मतलब आपके टाइम पास है, हमारे अगर आपका टाइम पास हो रहा है तो अच्छी बात है। Exactly. तो फिर हाँ bro, for me like 9 to 5, I don't relate with that culture. Still I'm doing 9 to 5. That's the only reason why I can say it. It's not like I'm preaching कि वो मैंने किया ही नहीं और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. But I'm doing it and I like doing it because of the people I'm working with. But it's not sustainable for me. I don't see myself doing it for the next 1-2 years. I want to get out of it as soon as I can. तो फिर bro ऐसे बोलते हैं ना, मेरे दिमाग में हमेशा ये सोचता है कि why should one person determine I can only take 24 leaves in a year? Why should one person determine I have to be there from 9 to 5? I'm working for 14 hours, I'm getting the same amount of money. I'm working for 4 hours, I'm getting the same amount of money. और आजकल जो ऐसा हो गया कि तुम्हें 9 बजे चेक इन करना है, 6 बजे 7 बजे ही पंच आउट करना है. तुम्हारा काम हो गया हो या ना हुआ हो. मेरा 4 बजे काम हो गया तो मैं निकल क्यों नहीं सकता? It's like a jail, bro. Like, and it's ऐसा सिस्टम बना दिया and people have normalized the system कि bro ये करना ही है तुम्हें जिंदगी में, तुम नहीं करोगे तो क्या ही होगा. अगेन सोसाइटी हैज प्लेड अ मेजर रोल कि मेरा बेटा जॉब नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है भाई. जॉब करना इज सो इम्पोर्टेंट. एंड मतलब ये बहुत चेंज हो गया बिकॉज माई मॉम यूज्ड टू टेल मी कि लाइक ड्यूरिंग द टाइम व्हेन शी वाज लाइक ग्रोइंग अप, तो उस टाइम पे वहां पर था कि जो जॉब वाले का कुछ इज्जत नहीं था कि ये तो सर्विस करता है और इसका फिर खुद का बिजनेस है, इसके डैड का फैक्ट्री इनके पास एंड ऑल दोस थिंग्स. तो लाइक हाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ बिकॉज एवरीवन वांट्स अ स्टेबल इनकम मोर, और अभी इतना पूरा सब एमएनसीज का ग्रोथ हो रहा है इंडिया में. तो ठीक है, फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड द पॉइंट दैट यू सेड कि अगर तुम 9 to 5 कर रहे हो एंड उसके बाद तुम वंडर कर रहे हो कि अरे मेरे पास लाइक यू हैव एम्बिशंस आफ्टर दैट आल्सो एंड उस पे एक्ट नहीं कर रहे, फिर मतलब देन ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस बिकॉज लाइक देन यू फिर वोंट बी सक्सेसफुल बिकॉज तुमने खुद का एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि योर लाइक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज समथिंग एल्स. And now which might come from a business or which might come from a side hustle. Correct. So that's there. But again, there are so many people who just like their 9 to 5 job. Yeah. They like their weekends off. Yeah. They like फिर दिवाली के जो भी फिर 2-3 दिन आती है, छुट्टी आती है, मेरे को लैपटॉप छूना ही नहीं. Again, now if you're like that driven, so and you want to start a business, so you need to understand कि along like the fact that you are a business owner, ऐसा सब LinkedIn पे लिखने को cool लगता है कि क्या कहते हैं फाउंडर एट दिस एंड दैट, बट योर वीकेंड्स आर स्क्रूड, स्पेशली इन द डेज वेयर लाइक तुमको उतना अट्रैक्शन नहीं मिला या तुम अभी भी बिल्ड कर रहे हो, स्पेशली इन दैट 0 to 1 stage, and it can be 1 year, 2 years, or even 5 years. 5 years, you never know. Yeah, but like you can't just take vacations, you can't let's say go out on weekends. तुमको probably like दिवाली वाले दिन काम करना पड़े, होली वाले दिन काम करना पड़े. Because at the end, you are responsible for your business being successful or not. 100%. It depends on your output, your effort, and all those things, right? Yeah, this is a plus point वो 9 to 5 का कि तुम अगर वही fucking you're slogging off, you're not doing anything, you're just pretending to work, you know that कि चल month end पे मेरे को इतनी सारी आने वाली है, job stability है. हर एक का फिर pros और like कौन सा, but at the end कि अभी मेरा ambition क्या है? Exactly. There are so many people who are making decent money in a like 9 to 5. Yeah. And they are just happy with it कि ये अच्छा stable income है. I can go out, I can chill with my friends. 1-2 साल में I can take a vacation. मतलब जो भी मेरा साल का कोटा है. Again बहुत सारे corporates में ऐसा है कि अगर आपने ये साल कम लीव ली तो आपका फिर carry forward हो जाता है. Correct. And then they take like a fucking 30-day break एक साथ. तो फिर शादी करके आ जाएंगे भाई. 30 छुट्टियां एक साल शादी करेंगे. But yeah,
तो ये आपको बेनिफिट मतलब ये आपको आपके नॉर्मल बिजनेस में नहीं मिलेगा जो आपका खुद का है। बट अगर आपका बिजनेस बहुत स्केल हो गया है कि अभी आपके लाइक हर एक डिपार्टमेंट के लिए देयर इज अ हेड, उसके अंडर मैनेजर्स आते हैं, उसके अंडर सब इंटर्न्स है, या फिर जो भी इतना सारा स्ट्रक्चर बैठ गया है ना, देन आप अपनी मर्जी के मालिक हो थोड़े। बट उसके बाद भी कुछ गारंटी नहीं है, मतलब है ना, कि अभी एट दैट टाइम यू जस्ट हैव टू बी लाइक यू नो अवेलेबल ऑन ऑल द फोन कॉल्स, क्योंकि आप आ रहे हो, आप थे 2 दिन की छुट्टी पे, आप आए वापस और कंपनी में कुछ हो गया एंड यू लाइक कि भाई मेरे को किसी ने कुछ बताया नहीं, बोला सर आपको कॉल किया आपने उठाया नहीं, बट एक्शन तो लेना था हमको। एग्जैक्टली। तो फिर यू आप लाइक एट दैट टाइम यू कैन रन अवे, राइट नाउ इन अ जॉब यू कैन रन अवे। वो जब सिचुएशन ऐसा आता है देन यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर ओन शिट। और बोलते हैं ना, मतलब हमारे लाइफ में कोई वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं। एक तो हम दोनों कर रहे हैं, लाइक बिजनेस एंड जॉब, सो इट्स लाइक वी आर ऑलवेज ऐसे रात को ऑफिस के आने के बाद या लाइक भाई टाइम देख ले, ऑप्शन अप्रूव है, व्हाटएवर, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। सो ये बिजनेस का ये देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। तुम वैकेशन पे भी काम कर रहे हो, एटलीस्ट तुम जॉब पे भी काफी जॉब्स होते हैं, तुम वैकेशन पे काम करते हो, बट एटलीस्ट यू कैन बी लाइक यू नो आई एम टेकिंग लीव्स फॉर 10 days, आई वोंट बी अवेलेबल। बट बिजनेस का डाउनसाइड ये है कि यू ऑलवेज हैव टू बी अवेलेबल, बिकॉज इफ यू डोंट वर्क यू डोंट गेट द रिजल्ट्स। अगर तुम 4 घंटा काम करोगे तो तुम्हें 4 घंटे का आउटपुट मिलेगा, तुम 12 घंटे काउंट करोगे तो 12 घंटे का आउटपुट मिलेगा। एंड इन द एंड एक और चीज़ है बिजनेस का, मतलब लाइक वी आर प्रो बिजनेस एंटायरली मेंबर्स, लाइक यू नो फिर जस्ट काइंड ऑफ पुटिंग द फैक्ट्स हियर कि फिर बिजनेस में लाइक यू नो वो भी है कि देयर इज नथिंग गारंटीड। तुम हफ्ते के 100 घंटे भी काम कर लो, फिर भी तुम लाइक यू नो फिर यू कैन बी इन लॉसेस। नेक्स्ट वन, इम्पोस्टर्स हॉट टेक। इफ अ रिलेटिव आस्क्स यू, और बेटा क्या करते हो लाइफ में, यू शुड बी अलाउड टू से आपको क्यों इतनी पंचायत है। मैनिफेस्टिंग जेठालाल एनर्जी फॉर एवरीवन। बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम लाइक विद देम आस्किंग मी कि तुम क्या करते हो लाइफ में, या कि क्या चल रहा है। आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद देम लाइक यू नो जस्ट यू नो फिर इंसिन्यूएटिंग देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑन मी व्हेन आई से कि अच्छा मैंने अभी ये किया, एग्जांपल मैंने भी जॉब स्विच किया, क्यों ये वो वहां पर तो इतना अच्छा ये अच्छा, तुमको पता कि मेरे को पता एग्जैक्टली। और क्या मैंने तुमसे पूछा, तुम्हारा ओपिनियन पूछा, जब कोई आता है सामने से पूछने के लिए उस टाइम तुम इग्नोर कर देते हो कि नहीं बेटा ये तो होता ही है, ठीक है। अब जब नहीं पूछ रहा, बस तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि मैंने इसके लिए ये किया वो किया, तो फिर ये तो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं, अरे कर दिया, खत्म हो गया, इट्स पास्ट, खत्म, क्यों ज्ञानबाजी करनी है इतनी। थेरेपिस्ट तो ही ना है भैंचो, तू क्यों अपना ज्ञान दे रहा है। इन दी एंड मैं भी सेम बोलने रहा था कि ठीक है मेरे को पूछने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो मैं बता दूंगा, बट उसके बाद बोलते हैं अरे मेरे बेटे ने तो ऐसा किया, तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, तो मैंने ऐसा किया था, मेरे को देखो कितना ऐसा है, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। फिर डैड को बोलेंगे आपने क्यों नहीं समझा इसको, भाई अपने बेटे पे ध्यान देना ब्रो, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है। इट्स लाइक डोंट फालतू में गिव ज्ञान व्हेन इट्स नॉट नेसेसरी। आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर ज्ञान, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, आई एम आंसरिंग, बी हैप्पी विद इट। ओके मैं कुछ नहीं कर रहा, अच्छा बेटा ठीक है तुम फिगर कर लोगे। यू शुड ऐसे गिव ज्ञान इन अ पॉजिटिव वे कि ठीक है ब्रो कुछ हो जाएगा अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, अच्छा जॉब करो ठीक है वेरी नाइस ब्रो, मैं ऐसे कितने छोटे थे अभी कितने बड़े हो गए हो तुम, वो सब बोलो ना भाई, फालतू में तुम क्यों बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड यू नो व्हेन वी टॉक, मतलब कि आई थिंक मतलब कि तूने भी क्या रहेगा एक्सपीरियंस, फिर मैंने भी मतलब यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस यू नो एंटायर थिंग दैट वी डू ऑन YouTube एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दे हैव लाइक यू नो अ 10 pointer क्वेश्चन कि ऐसा आफ्टर द 8th or 9th क्वेश्चन दे आर जस्ट यू नो फिर पिकिंग आउट प्रॉब्लम्स। अगर इसमें हो गया तो तू क्या करेगा, अगर ऐसा कुछ खराब हो गया फिर क्या करेगा। तो आई एम लाइक कि ये मेरे को पता है कि फिर ये सब हो सकता है, बट तो अगेन फिर दिस इज लाइक अ बिजनेस टू अस, इसमें भी रिस्क तो है ही 100%। अगर ये एंटायरली वो होता रिस्क फ्री होता तो फिर हर कोई करता। एग्जैक्टली। तो मेरे को समझ नहीं रहा कि ये हर चीज में लाइक वो क्यों निकाल रहे हो, फिर नेगेटिव पॉइंट्स क्यों निकाल रहे हो कि अगर ये हो गया तो वो हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो देखा जाएगा बाद में, क्या बोलूं उससे एग्जैक्टली। इन द एंड आई जस्ट वांट टू बी कि हमें मुझे ज्यादा पता है तुझे नहीं पता है, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात सुन। मैंने तो एक दो बार बोला हुआ भी है, मैंने एक दो बार बोला हुआ भी है कि यार कि मैं बोला ये कि आपने किया ऐसी है, बोलेंगे नहीं, मैं तो क्यों बोल रहे हो exactly, like if they are talking about you know for something CA related, then I'm saying वैसा पॉडकास्ट ही है। आप भाई माइक लगा के बता एक। वो मैं तो मेरे को भी okay, imposters hot takes. You should be allowed to watch a sex scene without feeling uncomfortable in front of your Indian parents. Bro, I don't think it's possible to feel comfortable while watching. मैं आज ही गारंटी देता हूँ कोई भी इमरान हाशमी का चुम्मी वाला सीन भी देख ले पेरेंट्स साथ बैठ के। I swear bro, it's just every kid goes through this. Not even kid bro, हम भी अभी अगर कोई सीन चला रहेगा ना we'll भी अच्छा फोन निकाल लेंगे, अच्छा हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, हमने तो कभी किया ही नहीं है। It's just a very awkward feeling which you can't explain, even though everyone is doing it, but we still can't explain.
वो पता नहीं क्या है अभी हमारे दिमाग में बैठ गया कि वो आर पेरेंट्स हैव नेवर हैड सेक्स एंड दे आर टोटली अगेंस्ट सेक्स हाँ. बट मैं पैदा कहाँ से हुआ उनकी वजह से तो हुआ ब्रो वन डे दे डिसाइडेड टू गेट हॉर्नी एंड हियर आई एम ये अगर आंटी देख रही है ये कैसी अपमानजनक बातें करता है आपका लौंडा. क्यों व्हाई आर यू पॉइंटिंग इट आउट ब्रो फिर से कट करना पड़ेगा क्या कुछ नहीं, ये तो कट ही नहीं हो रहा ये जो मैं कि लाइक मैक्स क्या होगा, आंटी कुछ कमेंट नहीं करेंगी. ये एपिसोड रिलीज ही नहीं हो रहा मेरी माँ पेपर डाल देगी bro. ये मैंने चली है घर से. Last one for the day. Imposters hot takes. It should be compulsory for fat people to go to the gym. Why the fuck do I have to say these controversial opinions? Sir? But it shouldn't be a hot take. It's just a Yeah. normal take that Yeah. that should just happen. मतलब Yeah. इसमें कुछ hot take जैसा है नहीं, to be very honest. Yeah. इसमें लोग offend हो वगैरह, उससे हमको क्या. Exactly. But ये उनकी भले के लिए अगर ऐसा तुम देखोगे, हाँ. it's just like telling like a like you know 10th fail guy कि भाई तू पढ़ ले, पढ़ाई कर ले. आज Exactly. पास नहीं होना क्या, पढ़ ले तेरे लिए अच्छा है, वरना Yeah. 10th fail कौन करेगा. Exactly. It's not like we are saying कि bro ऐसे you are fat it's a problem. No. But तुम्हें पता है if it's going to help you to take care of your body, if Yeah. it's going to help you to be fit, then you should go bro because even you know it's the right thing to do. And for some reasons हमारा फेसेस होते हैं कि हमें नहीं जाने का मन करता हाँ. बट तुम्हारे फेसेस वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक लास्ट कर रहे हैं हाँ. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दोस फेजेस एंड बी लाइक ठीक है ब्रो लेट मी जस्ट गो टू द जिम एंड सी हाउ इट वर्क्स इफ इट्स वर्किंग फॉर मी देन ग्रेट इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू देन फक इट And again, like to all the healthy people, not fat, healthy people, I can say is that in this scenario, I don't think that you can compare yourself with anyone else. Example, 100%. let's say कि निखिल है और कोई फिर बंदा है like who is very fat, ठीक है. अभी अगर निखिल हफ्ते का 3 दिन जाता है और तू उसको देख के नहीं ऐसा फिर कह सकता ना कि अरे ये तो 3 दिन जाता है, मैं क्यों जाऊँ 5 दिन. बट फिर लाइक यू नो लुक एट योर कंडीशन, यू नीड टू गो 5 days, है ना, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू टेक अपॉन योरसेल्फ कि नहीं, मतलब कि मैं ये एस्पेक्ट में लैक कर रहा हूँ. आई नीड टू बी नो फिर मोर फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ एंड लाइक यू नो कंसिस्टेंसी एंड ऑल. एंड जिम से भी ज्यादा लाइक फिर आई वुड से like to all those people कि just focus on your diet यार, तुम sugar exactly. like oil वगैरह सब कट करो. Yeah. Because we know a friend of ours, that guy, that idiot is just eating, मतलब और ऐसा नहीं कि कैसा like a compulsive eater. Yeah. अभी I was speaking to him last week or something and he is like कि मैं कल यहाँ गया था, मैंने वहाँ पर पाव भाजी वगैरह खाया, मैं फिर आज मूवी के लिए आया, फिर मैंने ये खाया, फिर उसके बाद फिर कल तू घर पे आया तो फिर रात को तेरे साथ वॉफल खा लिया, फिर ये हो गया वो हो गया. मैं बोला ये हर दिन ही कुछ ना कुछ बाहर का जा रहा है, शुगर ऑयल फ्राइड वगैरह जो भी है, ब्रेड वेड एंड ऑल. मतलब हर दिन तो खाना ठीक नहीं है ना. Exactly, bro. तुम लाइक हफ्ते का 1 दिन खाओ, वीकेंड पे खा लो, शादी में गए वहां खा लिया, बट 2 दिन शादी में गए तो फिर उसके बाद आता है ना कि भाई बहुत हो गया, 5 दिन अब नॉर्मल खाना खाऊंगा एकदम. एग्जैक्टली ब्रो, वही बोलते हैं ना कि चल हम भी कभी कभी खा लेते, चल एक हफ्ता बहुत कुछ वेडिंग फंक्शन कुछ भी हो रहा है, हमारे भी फेसेस होते हैं, बट तुम वो कंटिन्यूसली कर रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए. दैट इज द रॉन्ग थिंग. ऑन दैट नोट, thank you guys for watching this episode. We had some takes which were hot, which were based on our society, which were a little controversial, not controversial, but just discussing the things we wanted to discuss. And I don't know what this guy is up to now. गांड दुख रही है. Peace. I'm not going to say anything else. Peace. We'll see you next Sunday, and please subscribe to our channel. Subscribe.